So this is the essay. I've changed it today morning little bit. So what I'm sharing उसमें से करो and ये who will read it? निराली आप पढ़ोगे? Topic and translate करो. Yes, ma'am. Okay. Towns and cities are attractive places. Some people suggest that the government should spend spend money putting in more works of art like paintings and statues to make them better to live in. Do you agree or disagree? So टाउन्स एंड सिटीज यानी कि शहर अट्रैक्टिव प्लेस बन गए हैं, मतलब आकर्षक प्लेस बन गए हैं कि कई लोग सजेस्ट करते हैं दैट कि गवर्नमेंट को मोर पैसे खर्च करने चाहिए स्टेच्यूज और पेंटिंग्स और वो सब मतलब बिल्डिंग और उसमें लगाने सिटीज को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो और टू लिव बेटर to live in, like better to live in, मतलब और better place रहने के लिए बनाने के लिए. So do you agree or disagree? तो आप agree कर. एलिश आपके पास इस ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस हैं एग्री और डिसएग्री में? व्हाट ऑल ऑप्शंस डू यू हैव? यस मैम, एक्चुअली मैंने ये जब पढ़ा तो मुझे लगता है कि उसके मैं वाइल वाला भी सेंटेंस बना सकता हूँ ना मैम. हाँ, और वन साइडेड भी जा सकते हो. कंप्लीट यस, वन साइड. हाँ, आप कंप्लीटली एग्री करके ये लिख सकते हो कि हाँ ये बहुत जरूरी है जो है वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स एंड स्टैचूज. आप कंप्लीटली डिसएग्री करके कह सकते हो कि ये चीजें तो बहुत बाद की बातें हैं, पहले तो हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए. तो कंप्लीटली डिसएग्री हो जाएगा. एंड थर्ड ऑप्शन इज वाइल आर्ट एंड ऑल इज नेसेसरी, आई बिलीव money should first be invested on health and education. Yes. Yes ma'am. समझ गए? तो Yes ma'am. ये तीन ऑप्शंस के साथ you can handle this essay, right? Yes. And all three Yes. options can be handled very well. And there Yes, is ma'am. no this thing कि अगर आपने ये लिखा तो आपके better brand आएंगे, वो लिखा तो better आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. Whatever you write in the introduction, you support it and you are done, right? Yes. Yes. हाँ, so this essay I made, मैंने जो पहले लिखा हुआ था वो 400+ वर्ड्स का था, तो सुबह मैंने उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करा है और इंट्रो चेंज करी है सिर्फ. ठीक है? And this essay is totally agree. Okay? Okay. हाँ, completely agree करके बनाया है. आप मैंने अभी आपको बताया you can completely agree, you can completely disagree and you can put a while sentence कि while art important है, बाकी I चीजें believe ज्यादा important है. important है. Yes. Just like health and education. तो गवर्नमेंट को ठीक है, while ये important है तो आप लिखोगे कि थोड़ा सा फंड्स इसके लिए रिजर्व करना चाहिए, important है. और जो हमने इस ऐसे में पूरे पॉइंट्स 3 पैराग्राफ में दिए उनको कंडेंस करके एक में डाल दो. ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे. हाँ. और 2 पैराग्राफ्स बना दो कि बाकी चीजें which are needed for the people like health, good health and education, they should be focused on first. ठीक है? Yes. Right? Yes ma'am. So that essay will also be correct. And now this essay I've made that I agree. मैंने लिखा it is believed by some that some part of the national budget should be spent. That the some part of काट देती हूँ क्योंकि question में नहीं है. उन्होंने लिखा national part. ठीक है? That the national budget should be spent on the beautification of towns and cities. Okay? It is believed by some that the national budget should be spent on the beautification of towns and cities through works of art like statues and paintings. I believe that it should be done. And in the following essay, I'll put forth my arguments in support of my views. Okay? आप सिंपल ये जो एग्री है मैंने इसमें बड़ी अच्छे से लिख दिया है कि it should be done. ठीक है? Clear? And then 3 पैराग्राफ में मैंने इनके reasons डाल दिए हैं. Okay? Yes, ma'am. First paragraph में मैंने reason डाला है. The main reason why it is important to beautify towns and cities is that art instills happy feelings among people and acts as a stress buster. ठीक है? Putting up statues or sculptures in open areas gives an opportunity to people to enjoy it and acts as a distraction from the monotony of everyday activities. ओके, रोज की जो बोरियत वाली सिमिलर एक्टिविटीज है उससे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, कुछ अच्छी चीज देखते हैं तो उनकी आंखों को भी अच्छा लगता है और दिल को भी अच्छा लगता है. यस. ओके.
Research has proved that appreciating art helps people relieve stress. Having sculptures, statues, or murals in public places gives an access to people from all stratas of society. Stratas में apostrophe नहीं आनी चाहिए because it is used as a plural. Of society enjoy art and refresh their mind. अभी मैंने आपको apostrophe हटाई है, वो गलती से लगी हुई थी. Apostrophe वहां लगती है जहां हमने possession show करनी है. ठीक है, उसको मैं हिंदी या पंजाबी में आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाती हूँ. जिस सेंटेंस में ट्रांसलेशन में का या की आए उसमें अपोस्ट्रोफी लगाना, नहीं तो नहीं लगाना. आई विल गिव यू 2 sentences and you will tell me किसमें अपोस्ट्रोफी आनी है, किसमें नहीं आनी. ठीक है. First Yes, sentence ma'am. is I have 4 friends. My friend's name is Mohan. Okay. My friend's name is Mohan. हाँ, My friend's क्योंकि उसकी name है. ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड का नाम मोहन. का नाम है. कहाँ आ गया ना, जहाँ पे का या की पंजाबी में दा या दी आएगा वहां पे अपोस्ट्रोफी लगा दो, नहीं तो नहीं लगाओ. ठीक है. स्ट्रेटा, स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी. ये स्ट्रेटा का प्लूरल भी स्ट्रेटा होगा. लेट मी चेक, तभी वो रेड लाइन आ रही है. स्ट्रेटा. मैम स्ट्रेटा का मीनिंग क्या होता है? layers, all parts of society. Okay. सभी तबके के लोग. हाँ. Stratum. स्ट्रेटा, ये मैंने आपको डिक्शनरी खोल के बताई है. ये देखो, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम. अच्छा, स्ट्रेटम इज सिंगुलर एंड स्ट्रेटा इज प्लूरल. सो स्ट्रेटास गलत था मेरा वर्ड. ठीक है. स्ट्रेटम सिंगुलर है. अ लेयर और सेट ऑफ रॉक्स है, और भी है क्लास इन ए सोसाइटी, पीपल फ्रॉम ऑल सोशल स्ट्रेटा. देखो पूरा सेंटेंस ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल में. ठीक है. स्ट्रेटा का समझ आ गया मीनिंग अच्छे से? यू कैन सी द डिक्शनरी एज आई एम शेयरिंग इट टू यू. Yes, ma'am. यस मैम. तो अब समझ आ गया. स्ट्रेटास गलत था. स्ट्रेटम इज सिंगुलर एंड स्ट्रेटा इज प्लूरल. ठीक है. Yes, ma'am. तो अमंग ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी टू एंजॉय आर्ट एंड रिफ्रेश देयर माइंड. तो पहले पैरे में मैंने क्या पॉइंट डाला है? स्ट्रेस बस्टर है और हैप्पी फीलिंग्स देता है आर्ट. Yes. ठीक है. Yes. सेकंड पैरे में मैंने बताया है मोर ओवर. अब मोर ओवर का क्या मतलब है? मैंने और इसके रीजंस बताने हैं व्हाई आर्ट शुड, व्हाई मनी शुड बी स्पेंट ऑन आर्ट. ओके. मोर ओवर, Yes. moreover, installing statues in public places is not only a way to commemorate a famous historical figure, but also an interesting way for children to learn about the history or the accomplishments of that person. ठीक है. अगर Yes. हमने कहीं महात्मा गांधी का लगाया तो बच्चों को दिखाना है ना, ये देखो महात्मा गांधी का स्टैचू है, ये देखो इन्होंने ये किया था, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका ये हिस्सा था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. एंड ऐसी चीजें बताएंगे, बच्चों को पता चलेगा. ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल डाल दिया यहाँ पे, आपको भी कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इन माई होम टाउन देयर इज अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar. Everyone who passes by that statue reads about him and children are fascinated by it and know all about Dr. Ambedkar. ठीक है. वहां से निकलते हो अपने बच्चों के साथ, उनको बताते हो ये देखो डॉक्टर अम्बेडकर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इन्होंने, तो ये ही इज यू नो, ये सब बातें बताते हो. तो बच्चों को ना तो हम सिर्फ उनको कमेमोरेट करते हैं फेमस हिस्टोरिकल फिगर को, बट बच्चों को भी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उससे. ठीक है. Commemorate क्या मतलब डिस्क्रिप्शन देना होता है उसका नहीं मतलब? नहीं, कमेमोरेट होता है. मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी? याद मैम. याद मतलब. मेमोरेट होता है. अच्छा, मेमोरेट. ओके. कमेमोरेट होता है रिमाइंड पीपल. मैं अभी आपको डिक्शनरी. commemorate something or somebody is to remind people of an important person or event from the past with a special action or object. Okay. तो ऑब्जेक्ट हो गया ना उनका स्टैचू. ठीक है. और लोगों को रिमाइंड करना कि ये इम्पोर्टेंट पर्सन थे. ओके. कमेमोरेट करने के लिए. ठीक है. Commemorate. Okay. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. So what has happened? Screen sharing has stopped. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now it's again there. Yes. Yes, ma'am. Some message is there. Let me see. I don't know. मंजोत 21 जन ऐसा कुछ मंजन. लिखा है. चलो कोई नहीं. ओके. सेकंड रीजन हो गया सेकंड पैरे में.
Third para mein, another added advantage is that statues become a tourist attraction and people like to visit places which have every history, art and culture. This helps the local business and thus helps make the economy of the place better. For example, the Rock Garden in Chandigarh has modern sculptures made of trash, which attract a lot of tourists from all over the world. Artworks make the cities and the country more beautiful and attractive for the residents and for those who visit. ठीक है, तो टूरिज्म वाला मैंने थर्ड पॉइंट डाल दिया. अब 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, मेरे 3 बॉडी पैराग्राफ्स बन गए और मैंने वन साइड से बना दिया, which is pretty good. और उसके कंक्लूजन में कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ये मैंने तीनों ऑप्शंस क्या कर सकते हो फॉलो, ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बताई हैं जिनका आज फर्स्ट डे है. बिकॉज स्टूडेंट्स को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आज हमारा फर्स्ट डे है, हमें पहले वाली क्लासेस नहीं अटेंड करी तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हियर जिनका फर्स्ट डे है, क्या आपको आज अभी समझ आ गया एग्री डिसएग्री ऐसे का फंडा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग. समझ आ गया ना? कुछ नए Yes, ma'am. ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. एग्री डिसएग्री है, यू हैव टू हैंडल इट. यू कैन हैंडल इट 3 ways: टोटली एग्री, टोटली डिसएग्री, और यू कैन गो पार्शियल बाय गिविंग अ कंसेशन. ठीक है, आप एग्री और डिसएग्री एक ही चीज से नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट से आई पार्शियली एग्री, भी मैं कुछ हद तक एग्री करती हूँ. अगर आप इस ऐसे में पार्शियली एग्री लिखोगे वर्ड, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो स्टैचूज और स्कल्पचर्स कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं. उसको आप ये ऐसे नहीं होता, आप कंसेशन देते हो. कंसेशन में पार्शियल जाना है, उसका मतलब है टोटली एग्री या डिसएग्री ही कर रहे हो पर थोड़ा कंसेशन दे रहे हो कि कुछ और चीज पे भी कर दो. देखो, अगर हम लिखते हैं while art works are important, government should first spend on health and education. ठीक है, अब आपने सिर्फ कंसेशन दिया कि वो इम्पोर्टेंट है पर पहले सारा खर्चा हेल्थ और एजुकेशन पे करो, तो आपने डिसएग्री करा है. पर आपने साथ में ये लिख दिया कि अगर एक्स्ट्रा बजट है तो आर्ट वर्क्स पे कर दो, पर पहले हेल्थ और एजुकेशन करो. ठीक है, उस वे में आपकी इंट्रोडक्शन बनी है. फिर आप एक पैरे में आर्ट वर्क्स की इंपॉर्टेंस बता सकते हो और 2 पैरास में जिन चीजों पे गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देके खर्चना है वो चीजें लिख सकते हो. सो गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है, यू कैन क्लैरिफाई इट. तो एक तरह का एसे मैंने हैंडल करना आपको सिखा दिया, एग्री डिसएग्री ओपिनियन एसे. मैम वाइल वाला सेंटेंस इंट्रोडक्शन पे आएगा क्या? हाँ, इंट्रोडक्शन में ही आएगा वाइल वाला. उसमें आप लिखोगे Ma'am. while artworks are important, it is comma, it is more important to spend on education and health. Ma'am. हाँ, Ma'am, there is a particular word regarding the paintings on wall. graffiti. Yes, ma'am. ग्राफिटी की बात कर रहे हो? हाँ, Yes, yes, ma'am. ग्राफिटी इज एन आर्टवर्क. ग्राफिटी इज एन आर्टवर्क, पर वो कई जगह इलीगल है. ओके, Okay, ma'am. ग्राफिटी Yes, होती ma'am. है. ग्राफिटी इसमें जितना ज्यादा दूर से मत लगाओ. ग्राफिटी इज राइटिंग्स ऑन द वॉल्स, पेंटिंग्स एंड ऑल ऑन द वॉल्स. और Please. वो जैसे लोग कोई भी आके अपना एडवर्टाइजमेंट पेंट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. ग्राफिटी कई लोग सड़कों पे बनाते हैं, कई लोग दीवार, खाली दीवार मिल गई वहां ग्राफिटी बना दी, कोई आर्ट वर्क बना दिया पेंटर्स ने. Please, please. ठीक है, उसको ग्राफिटी कहते हैं. Okay, please, ma'am. मैं आई जस्ट शेयर फॉर एवरीबॉडी. मैंने वर्ड छेड़ा है तो आई थिंक बच्चों को इसका पता हो. अच्छी चीज है. यस, वो मूवी में भी दिखाया है. मूवीज में भी मैम, दिखाते हैं. हाँ जी. Ma'am, वो and वाले. even there's one country who legalize it. हाँ, लीगल है कई. अब इंडिया में तो सब लिखते ही हैं दीवारों पे ग्राफिटी. ग्राफिटी के एग्जांपल्स. ठीक है, drawings or writing on a wall etc in a public place. The subway Please. was covered in graffiti. Someone had scrawled graffiti all over the school walls. ठीक है, word origin क्या है? Italian plural graffio sketch. Extra examples: racist graffiti was sprayed on the walls. The buildings were covered with graffiti. A fashionable graffiti artist. ठीक है, Artist. ये ग्राफिटी का है. इसकी प्रोनाउंसिएशन है ग्राफिटी. ओके, मैं पहले इसको ग्राफिटी बुलाती थी पर ग्राफिटी नहीं है, इट्स ग्राफिटी. ओके, Graffiti. ओहो, फिर मैंने वो कर दी गड़बड़. Okay, so this is it. This is the essay done. Now, second essay that we are going to do is, some people say that museums should be free, whereas others opine that some entry fee should be there. Discuss both sides and give your opinion. Okay.
अब कुछ लोग कहते हैं ये डिस्कस ऐसे आ गया, जो फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट्स हैं, नाउ बी अलर्ट, दिस इज अनदर टाइप ऑफ essay that you can see in the IELTS. This is a discuss essay, okay? And you must learn how to handle a discuss essay. If you learn how to handle the essays, all type of essays, and you have the points for the essay, you are done with your IELTS writing essays, okay? That is very important. You learn how to handle a specific type of essay, any type of essay, ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं म्यूजियम्स फ्री होने चाहिए और बाकी लोग कहते हैं एंट्री फ्री होनी चाहिए, ओके? डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. इसमें क्या लिखना है आपने इंट्रोडक्शन में कि सम पीपल से दिस व्हाइल अदर पीपल से दैट, एंड इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ, एंड फिर अपना व्यू क्यों देना है? नॉर्मली जरूरत नहीं होती डिस्कस एसे में, बट इन्होंने क्या करा है कि जो है ना टास्क बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, वो इन्होंने 2-3 साल पहले मॉडिफाई करे और उसमें ये कर दिया कि 7 बैंड क्वालिफाई करने के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन अ स्टैंड इन द इंट्रो. अब जो स्टैंड है इंट्रो में, वो अपना व्यू लिखे बिना आ नहीं सकता है, ठीक है? So you have to write your viewpoint along with writing this sentence that in this essay both views will be discussed. ठीक है? Okay. हाँ. मैम क्वेश्चन में भी पूछ रहा कि गिव योर ओपिनियन. हाँ, देखो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि जो ओपिनियन ऐसे है 3 तरह के, उनमें ओपिनियन वर्ड आता ही नहीं टॉपिक में, और जो डिस्कस ऐसे है ओपिनियन ऐसे नहीं है, उसमें ओपिनियन वर्ड आता है इंट्रो टॉपिक में, ठीक है? And ma'am, can we write our stand in the last para? लास्ट में भी लिखना है, लास्ट में तो लिखना ही लिखना है. देखो मैं आपको समझाती हूँ. Okay. जब मैं पढ़ाने लगी थी 2006 में मैंने शुरू करा, तो मैंने बहुत सर्च मारी, मेरे को पढ़ाना था, तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी अपनी, और मेरे को यही एंड वाज दिस कि डिस्कस ऐसे और ओपिनियन ऐसे में ये डिफरेंस है कि ओपिनियन ऐसे में इंट्रो में भी अपना ओपिनियन देना और कंक्लूजन में भी, और डिस्कस में सिर्फ कंक्लूजन में देना है. That was the difference. Okay. And I was teaching that only. पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैंड डिस्क्रिप्टर्स में कर दिया कि ये कैंडिडेट शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर क्वालिफाइंग फॉर बैंड 7. अब बैंड 7 क्वालिफाई करना है तो डिस्कस में तो स्टैंड लिखते नहीं थे हम इंट्रो में. Okay. इसलिए लिखवाना शुरू कर दिया. कुसुम ये लाइनें बंद कर दो बेटे प्लीज. कुसुम ये लाइंस मत ड्रॉ करो. ओके. Now this is a discuss essay. Some people argue that museums should be free to the general public and funded by governments, while others believe that there should be an entrance fee like that of other tourist attractions. This essay intends to discuss both views. I personally believe that there should be a normal entry ticket and 1 free day every month. ठीक है? अब मैंने अपना एक कंसेशन दे दिया कि एंट्री टिकट होनी चाहिए, पर हर महीने एक फ्री डे होना चाहिए. ये एक्चुअली मेरे को ये आइडिया लिखने का इसलिए आया था बिकॉज आई विजिटेड ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस. व्हेनेवर आई गो टू मीट माय डॉटर, मैं दो बार गई हूँ वहाँ ह्यूस्टन, तो मैंने दोनों बार उसको ये म्यूजियम जरूर विजिट करा है. और उन्होंने ना 2nd Tuesday of every month फ्री करा हुआ है 12 to 4. Ma'am, it is the same for Taj Mahal also. ताजमहल फ्राइडे को फ्री है ना? Yes, ma'am, it is free on Friday. हाँ, पर वो वीक में एक दिन है, उन्होंने मंथ में एक दिन, वैसे $20 टिकट है, ठीक है? Okay. और मंथ में एक दिन फ्री है, तो उस दिन ना मैं उस दिन भी टिकट वहां लेनी पड़ती है, पर पैसे नहीं देते, और टिकट उनके बॉक्स में जाती है. दे जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी पीपल कम ऑन दैट डे ना, तो टिकट तो फिर भी वहां देते हैं, पर फ्री में देते हैं उस दिन, एंड यू डोंट स्पेंड एनीथिंग. तो मैंने वो वाला आइडिया इसमें ऐसे में डाल दिया कि एक फ्री डे हो और टिकट होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ टिकट होने के मैंने फायदे डाल दिए, और एक दिन फ्री करने के भी मैंने फायदे डाल दिए. कंसेशन दिया है, पर मैंने क्या करा है, मैंने उस साइड के साथ एग्री करा है जो कह रहे हैं कि टिकट होनी चाहिए. Please, ma'am. ठीक है? Yes. लाइक दैट. सो सम पीपल से ये हो गया इंट्रोडक्शन. दोज हु ओपाइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस एसे का जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनके टॉपिक सेंटेंस आप अच्छे से देखो. टॉपिक सेंटेंस कैसे है कि 1 साइडेड जो है टॉपिक सेंटेंस जो है वो जो एक साइड के लोग कहते हैं उस वे से लिखना है. आपके व्यू नहीं है अभी. सम पीपल है. सो दोज हु ओपाइन, जो लोग ओपाइन करते हैं म्यूजियम्स फ्री हो, वो कहते हैं कि institutions like museums are a public service and therefore there should be a free access to the people. वो कह रहे हैं कि जैसे ये म्यूजियम्स है, ये पब्लिक सर्विस है, लोगों के लिए है,
तो इनकी एक्सेस भी लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए, ठीक है. दे शुड बी फ्री एक्सेस टू द पीपल. इफ फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ चार्ज, अगर कोई चार्ज होता तो only the wealthy could afford to enjoy works of art. This would not be fair, as they are educational institutions and everyone should be able to learn from these museums. उनका एक ही रीजन है, मैंने एक रीजन से उनका पैरा बना दिया है. वो कहते हैं कि ये पब्लिक सर्विस है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हर एक को हक है कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीखे, इसलिए इनको इन पे कोई टिकट नहीं होनी चाहिए, ठीक है. On the other hand, the argument given by those in favor of charging an entry fee is that both museums and art galleries need to do so. ये two missing है यहाँ पे. Need to do so if they are to survive in the modern world. Governments do not have sufficient funds to subsidize all such institutions, and there are other priorities for public money. तो वो लोग कहते हैं कि इनमें अगर ये जरूरी है टिकट लगानी, अगर ये टिकट नहीं लगाएंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इनको पूरी तरह फंड करे और बिल्कुल फ्री लोगों को आना जाना करे. सरकार को इनके देखभाल के लिए पैसे खर्चने हैं, इनके अंदर जिन लोगों को एम्प्लॉय किया उनकी तनख्वाहें देनी है, तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा अगर इनकी टिकट नहीं होगी. Got it? Therefore, these art galleries need to charge their customers not only to survive, but also to update their exhibitions and make new purchases. To cite an example, the Pushpa Gujral Science City in Kapurthala could not have sustained without revenue from the entry tickets. तो ये sustain नहीं कर सकता था अगर entry ticket से revenue नहीं होता. ठीक है? तो आप वैसे पंजाब के कितने बच्चे आपने ये देखा है पुष्पा गुजराल साइंस? Yes, ma'am. मस्ट सी प्लेस, मस्ट सी. और जो बाहर है वो भी जरूर आओ इसको एक बार देखने, ठीक है? क्योंकि बहुत ही अच्छा है. मैंने फर्स्ट टाइम जब विजिट करा था तो इसमें बहुत कम चीजें थी, फिर उसके बाद दोबारा व्हेन माय डॉटर केम 2-2.5 साल पहले, फिर मैं बच्चों को ले गई थी, फिर इसमें बहुत एडिशंस हुई थी, और ये एडिशंस करते रहे, इसके लिए उनको फंड्स चाहिए. कहाँ पे है ये जलंधर और कपूरथला के मिडवे पे है, मतलब कोई कहते हैं कपूरथला पे चलता है और कोई कहते हैं ब्यास के पास. अच्छा. Even ma'am, one more, Gobindgarh Fort in Amritsar. Earlier that fort was under army, and right now it is open for public. And in that fort, there is one room particularly made for keeping the Kohinoor diamond. Oh. Yes. Oh. Okay. So you can see the example, you can put in any example, and if the museums have to add things or art galleries have to add things, they need money, and if government will put all the money into this, then the funds on other important things will be less. ठीक है? ओके. फिर मैंने अपने व्यू का एक पैरा बनाया. अच्छा, आप डिस्कस ऐसे हमने कैसे कराया हुआ है, कैसे हैंडल करना है. 1 पैरा 1 साइड व्यू, 2nd पैरा 2nd साइड व्यू, और उसकी स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि ऐसे लगे पता कि किसी और के व्यू बता रहे हो. ठीक है? और 3rd पैरा, आई बिलीव दैट without an entry ticket it would be difficult to maintain the museums. However, a day could be fixed per month when the entry could be made free for a few hours so that the common man can also go there on that day. For instance, in the Houston Museum of Natural Science, entry is free on the 2nd Tuesday of every month. And so school trips and many other people frequent the museum on those Tuesdays. Okay? Okay. So to sum up, there is no harm if museums charge some fees for entering the museum, but it should not be very high, and then one free day could be there every month for the poor people also. ठीक है? और इसका देखो प्लान कैसे है. पैरा 1 1 व्यू, पैरा 2 अदर व्यू, पैरा 3 पर्सनल ओपिनियन, एंड देन कंक्लूजन. तो ये जनरल वालों को भी अगर डिस्कस ऐसे आए, इसी पैटर्न से हैंडल करना है. ठीक है? और ये वाला ऐसे तो वैसे ही जनरल सा ऐसे है, जीटी वालों को भी सिमिलर ऐसे आ सकता है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट. Some people claim that public museums and art galleries will not be needed
because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree with this opinion? Disagree. You can disagree. Disagree. You can Yeah. disagree. You can also put a while sentence and disagree. Okay? समझ आया मैं कैसे बोल रही हूँ? while sentence और disagree कैसे कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चलो चलो try करो. सुखप्रीत, try the while and disagree. Ma'am, sorry. while sentence डालना है और disagree Okay. करना. Okay? Please, ma'am. Like starting in the starting paragraph, ma'am. हाँ, जो है ना पहले देखो, when you make an introduction, आप टॉपिक की Please, ma'am. पैराफ्रेजिंग करते हो वन सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में आप जो है उसको Okay. Got it, ma'am. अपना थीसिस बनाते हो, ठीक है? Yes. हाँ. Some people claim that public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and work of art by using a computer. Do you agree or disagree? Okay. Most individuals. It is believed by some that. It is believed by some that. Some people claim that. कि paraphrasing, it is believed by some that. Okay. Some people. ये Okay, ma'am. इजी है, आप हर ऐसे में डाल सकते हो. सोचने का टाइम Yes. टाइम मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. ऐसी चीजें Please, पकड़ो, ma'am. ठीक है? हाँ. बच्चे कहते हैं हमें घंटा लग गया ऐसे लिखने में. घंटा क्यों Yes, लगेगा ma'am. भाई? हाँ, ठीक है? हाँ, Okay, ma'am. चलो. It is believed by some that. आगे करो. It is believed by some that public museums and art galleries will not be needed. हाँ, तो ये पैसिव है, एक्टिव कर दो. Because of technological. हाँ, ऐसे कर दो. Because of because of computer- Technological advancement. yes. Public museum. There will be no need of museums and art galleries. Okay? Yes. Okay, ma'am. Because of technological advancement, there will be no need of museums and art galleries. Full stop. ये हो गई paraphrasing. Yes. Now Yes. your thesis statement. सुप्रीत, और सेकंड नंबर पे आपने बनाना है निराली. अच्छा, बनाऊं मैं? पहले उनको बनाने दो. अच्छा, okay. हाँ, Thesis ma'am. statement. हाँ, Ma'am, thesis thesis बनाओ. statement. बनाओ. Thesis statement means last line. हाँ, सेकंड सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने बताना है एग्जामिनर को कि आपने ऐसे में क्या डालना है. ओके? Okay. हाँ. Okay. Like I am disagree or agree with the. आई एम डिसएग्री तो गलत इंग्लिश है ना, एम नहीं आता बीच में. Okay, ma'am. Sorry. आपने डिसएग्री करना है पर कंसेशन देना है, तो वाइल सेंटेंस बनाओ. Okay. How some people that this I think difficult for me because. अच्छा, निराली का सुनो फिर. निराली बनाओ. Please, ma'am. Okay. So while a virtual visit can, while during the virtual visit, people can see historical objects. I believe that the real visit, the practical visit should be more beneficial, and it will also improve the economy of the nation. हाँ, तो आप इसको लिखो. while advancement in technology can क्या बोला था आपने? Virtual visit. हाँ, can you know, people, while advancement of technology can help people to see these public museums and art galleries, comma, I believe actually visiting a place can never be replaced by any technology. Yes, can never be replaced by any technology. Actual visit is still needed. समझ गए? Yes. Is still Yes. better. ऐसे लिख दो, but actual visiting a place is still better. ठीक है? Yes. अब Yes. देखो, आप मैं सलारजंग म्यूजियम गई हैदराबाद. अब मैं जितना मर्जी उसके बारे में देख लूं, जो एक्चुअल जाके वहां मजा आया वो ऐसे थोड़ी आ जाएगा कंप्यूटर पे देख के. No. ठीक No. है? वहाँ एक घड़ी है, उसमें से कुकू बाहर निकलता है, कहते हैं 12 बजे 12 बार निकलता है, तो वो 12 बजे वहां होना बड़ा मजा आता है. तो 12 बजे अब ये चीजें आपको कंप्यूटर में पता चलेंगी? नहीं ना. हाँ, तो एक्चुअल विजिट का अपना ही मजा है. ठीक है?
या वो याद भी रहता है। याद भी रहता है ना, एक्चुअल विजिट करना। अब ऐसे Yes. टाइगर हिल्स है दार्जिलिंग में, वहां पे सनराइज देखने लोग जाते हैं, ठीक है। Yes. तो वी वर देयर ऑन द 31st of December, हमने सनराइज देखने गए 2 बजे रात के, हम गए कि 4 बजे सनराइज हो जाना है, अगर हम लेट हो गए तो नहीं होगा, माइनस में टेम्परेचर, हम चल रहे हैं ऊपर, एंड आई वाज Oh थिंकिंग wow. पागल है हम लोग, पागल है कि इतना क्या सनराइज देखना है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में पैदल चल के जा रहे हैं sunrise। और वहां जब गए तो पैर रखने की जगह नहीं थी, हमारे जैसे पागल बहुत थे। फिर एक बार देखा होगा तो ऐसा लगा कि नहीं वर्थ था ना ये चलने बस का ऐसा। हाँ बिल्कुल। हाँ Yes. See, you can never that can Yes. never be replaced by any other thing, ठीक है। Yes. अब ह्यूस्टन में नासा को विजिट करा, जितना मर्जी आप मूवीज में देख लो, कंप्यूटर में देख लो उसकी पिक्चर्स, एक्चुअल विजिट करके मजा आया वो कभी हो ही नहीं सकता वैसे। Yes, ma'am. मैम वो Yes. एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाते हैं ना, तो वो बहुत Yes. डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। Yes. तो एक्चुअल विजिट विल स्टिल बी नीडेड, हमने कह दिया वाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से देखा जा सकता है, एक्चुअल विजिट विल स्टिल बी नीडेड। तो ये हो गया, सुप्रीत समझ आ गया अब अच्छे से, Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना। Good. सी Yes, दिस yes, इज ma'am. इट। अब वाइल सेंटेंस बना के आपके पास क्या स्कोप है कि आप एक पैरा बना सकते Okay. हो कि हम कंप्यूटर से सब कुछ देख सकते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो एल्डरली हैं, जो जा नहीं सकते, जो डिसेबल्ड हैं, जो जा नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। Yes. Yes. तो आप ऐसे एक पैरा वो बना के फिर 2 पैरे एक्चुअल विजिट्स के फायदों के लिख सकते हो, आपका ऐसे बहुत अच्छा बन सकता है, Please, ma'am. ठीक है। अगर मैंने ये ऐसे जो है वन साइडेड बनाया, मैंने डिसएग्री करा और मैंने कहा है कि ये जो है पब्लिक म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज की फिर भी जरूरत होगी, चाहे लोग इन सब चीजों को देख सकते हैं, फिर भी पब्लिक म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज की जरूरत होगी, तो मैंने ये इससे डिसएग्री करा है, ठीक है। Yes. क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इनकी जरूरत नहीं होगी, इनको मत बनाओ, सब कुछ तो कंप्यूटर पे देखा जा सकता है, व्हाई टू मेक पब्लिक म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज। तो मैंने उससे डिसएग्री कर दिया कि इनकी तो फिर भी जरूरत रहेगी, ठीक है। यस मैम। सो फर्स्ट पैरे में मैंने डाल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर रिप्लेस रियल पब्लिक म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, नो मैटर हाउ रियल एंड विविड कंप्यूटर images are, they are only images, Yes. and can never be likened to the historical objects. So difference can be compared by seeing the picture of a mango and actually eating a mango. फर्क है ना भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सारे मैंगोस की वैरायटी की फोटो देख लो, लंगड़ा, सफेदा, और जो मजा एक खा के है वो तो नहीं आ सकता ना देख के, ठीक है। मैम सेकंड, अभी मैंगो क्यों याद करवा रहे हो? क्योंकि अभी मिल नहीं रहा, अभी अभी मिल नहीं रहा इसलिए। हाँ. चलो, और secondly visiting museums and art galleries is a rewarding experience in many other aspects also, many other respects. एक्सरसाइज है, जब जाते हो चलते फिरते हो, कोई ना कोई स्टेप्स आपके पूरे होते हैं, गुड टू हेल्थ है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम निकाल के जाते हो, उनके साथ भी एंजॉय करते हो, ठीक है। Yes. उस जगह के कल्चर एंड ट्रेडिशन का भी पता चलता है, ठीक है। Finally, I believe that after seeing these objects and museums, our craving to actually see these increases even more. अब वहां देख के लगता है अच्छा ये इतनी अच्छी जगह है, चलो इसको देख के आते हैं, तो फिर मन करता है कि और भी इसको देखें जाके। Yes. सो ये पॉइंट्स मैंने करा दिया, बाकी आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। और मैंने आपको ये वाला ऐसे में वाइल्ड सेंटेंस भी डालना, एग्री डिसएग्री में सिखा दिया अच्छे से, ओके। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो अगले कोई ऐसे आएगा उसमें उनको टर्न देंगे बनाने का, ओके। Some people think museums should be enjoyable places to attract and entertain young people, while others think the purpose of museums should be to educate, not entertain. Discuss both sides and give your opinion. अब कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजियम्स जो है ना वो अट्रैक्ट और एंटरटेन करें यंग पीपल को, एंटरटेन भी करें, अट्रैक्ट भी करें, ऐसे होने चाहिए कि लोग यंग पीपल वहां जाना चाहें। दूसरे कहते हैं म्यूजियम्स का एक ही पर्पस होना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। और अब आपने दोनों डिस्कस करने हैं और फिर अपना व्यू देना है, ठीक है। तो अब ये आप देखो डिस्कस ऐसे है, इस ऐसे को डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ये एक पैरा लिख दिया क्यों कुछ लोग कहते हैं एंटरटेन करें, फिर एक पैरा लिख दिया क्यों कुछ लोग कहते हैं एजुकेट करें, और फिर मैंने एक पैरा बना दिया मेरे व्यू में। मेरा व्यू ये है कि एजुकेट भी करें और एंटरटेन भी, और दोनों, दोनों। ठीक है। तो जो व्यू है अपना अलग है,
तो मैंने इन माय ओपिनियन यहाँ लिख दिया म्यूजियम्स कैन एंड शुड बी बोथ एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल। अब कैन एंड शुड मैंने दोनों वर्ड लगा दिए मॉडल्स। इसका क्या मतलब है? कर सकते हैं और करना भी चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, कैन एंड शुड बी बोथ एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल। ठीक है, और उसको मैंने अपने व्यू में दे दिया। यू विल रीड दिस एसे, यू विल कम टू नो इफ आई गो इनटू द डेप्थ। अब ये इजी एसे है, पढ़ लोगे ना, फाइल तो शेयर हो ही जाएगी आपके साथ। Yes, ma'am. Okay, next essay is museums and art galleries should concentrate on local works and not show the cultures and artworks from other countries. To what extent do you agree or disagree? Disagree. मतलब ये ऐसे है कि म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज को सिर्फ लोकल वर्क दिखाने चाहिए और बाकी कंट्रीज के वर्क नहीं दिखाने चाहिए। अब ये ना बच्चे ये कंफ्यूज कर देते हैं, वो कहते हैं some people say this, other people say that। ऐसा नहीं है, आपको समझ आ रही है? ये एक ही व्यू है। Yes. एक ही व्यू है और उसके साथ आपको एग्री करना है या डिसएग्री करना है। ठीक है, और मैंने इसमें वो करा हुआ है, कंसेशन देके डिसएग्री करा है। कंसेशन देके डिसएग्री करा है। अब एक नया स्टूडेंट ये कंसेशन और डिसएग्री का सेंटेंस बनाएगा। एलिश आप बनाओगे, कंसेशन करके डिसएग्री करना है। टॉपिक आपको दिख रहा है? Yes, museum and art galleries should concentrate on local works, not showing the culture and artworks from other countries. Okay. While I agree that museum and art galleries should concentrate on local works to some extent, I disagree that museum should not show culture and artwork from other countries. Very good, बहुत अच्छा बनाया आयुष। Okay, ma'am. Okay, टेक्निकली गुड, पर आपने वो पहले सेंटेंस की पैराफ्रेजिंग नहीं करी ना, आपने ऐसे ही बोल दिया ना था। मैम, मुझे लगा कि आपने सिर्फ वाइल वाला सेंटेंस बोला ना, मैंने इसलिए। बोला वाइल वाला ही था सिर्फ, आपने सही करा है। मैं वैसे बता रही हूँ, बाकी बच्चे ये कंफ्यूजन ना कर दें कि ऐसे ही लिखना है, इसलिए बोला मैंने। और मैम वन डाउट है इसमें हाँ, कि ये म्यूजियम और आर्ट गैलरी से ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं यहाँ पे वो सेंटेंस बना सकता हूँ जैसे इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, सिर्फ एक ही सेंटेंस बनेगा वो मेरा? एक ही बनेगा ना, उस एक हाँ, बनेगा तभी तो एग्री डिसएग्री करोगे ना उसके साथ। यस, तो वो मैं सेंटेंस बना सकता हूँ ना, इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट। हाँ, इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज शुड फोकस, कॉन्सेंट्रेट की जगह कर दो फोकस, और ओनली ऑन इंडिजिनस। लोकल की जगह क्या करोगे? इंडिजिनस। Yes. ये अब देखो, बच्चे कहते हैं वोकैबुलरी। अब ऐसे जब सारे ऐसे पढ़ते हो तो ये वाले वर्ड्स कर लो, इंडिजिनस कर लो वर्ड, INDIGENOUS, इंडिजिनस। ठीक है, होता लोकल। ठीक है, लोकल आर्टवर्क and not show the artwork of other nations, countries का नेशन कर लो, फॉरेन आर्ट कह दो, and not show foreign art। ठीक है, फिर आप लिख लो while I do feel local artists need support, I cannot agree that museums should restrict themselves to just local artwork। एक ही बात है जो एलिश ने बोली है, उसने डिफरेंट वर्ड्स में बोली है, वही बात है। And ma'am, overseas nations, ओवरसीज भी कर सकते हो, please. वो इतना अच्छा नहीं लग, जमता नहीं है, बहुत अच्छा कोलोकेशन है। Okay, ma'am. ठीक है, Please. ठीक है। अब मैंने फर्स्ट पैरे में दे दिया कि वाई लोकल आर्ट एंड पेंटिंग्स को सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, उनको तो सपोर्ट देना ही चाहिए, यही बोला ना हमने इंट्रो में कि उनको तो सपोर्ट देना ही चाहिए, पर फॉरेन भी रखना चाहिए, यही बोला ना हमने इंट्रो में। Yes. हाँ, तो फिर एक पैरा बना दो, वाई लोकल आर्टवर्क को सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर अगला पैरा, अगर सिर्फ लोकल आर्टवर्क को सपोर्ट देंगे तो फिर लोकल पीपल को जाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा उनमें। हाँ, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। हाँ, और फिर सेकंड आर्गुमेंट अगले पैरे में दे दिया है कि अगर इनफ लोकल आर्ट हो ही नहीं, अगर लोकल उस जगह में लोकल लोगों का कोई आर्ट वर्क ही नहीं है, तो म्यूजियम क्या रखेंगे अपने अंदर फिर? ठीक है, और अगर लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट ही करना है, तो मैंने उसमें ये भी दे दिया कि लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट उनके कॉम्पिटिशन्स रख सकती है या उनकी डिस्प्लेज कर सकती है उनके वर्क के। ठीक है, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको आर्ट गैलरीज में जगह दे सकती है कि अपना आर्ट डिस्प्ले कर लो। ठीक है, तो ये लोग, गवर्नमेंट उनको इस वे में सपोर्ट कर सकती है, पर फॉरेन आर्ट वर्क तो रखना ही चाहिए म्यूजियम्स में। What is the meaning Yes. of lackluster work? लैकलस्टर होता है, लैकलस्टर क्या होती है? शाइन। लैकलस्टर मींस जिसमें शाइन Less interest, ma'am. हाँ, बोरिंग। हाँ, boring. ठीक है, Yes. ठीक है, तो ये ऐसे भी आप बाकी पढ़ लेना, आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, Let's go ahead.
many countries construct modern buildings to give a good view of towns and cities. Some people say that countries should make new buildings with traditional style to preserve their culture as part of their identity. Do you agree or disagree? देखो, इस ऐसे में आप एग्री कर सकते हो कि ऐसे क्या कह रहा है, पहले तो इसको अच्छे से ट्रांसलेट करो. गुरपिंदर, will you translate? घबराओ नहीं, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा. नो मैम. अच्छा, एक्चुअली मैम मैं बहुत कंफ्यूज है. ਲਾਈਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ. ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਚ. ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ? ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ, ਅਗਰ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਬਤਾਓ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਈ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋ. हाँ मैम मैं उस चीज तक कंफ्यूज है. मैंने समझ नहीं आ रही कि मैं उत्थे भी जो मेरे पास नए बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, उनको मैं 1 महीने पे 7 पे पहुंचा सकती हूँ, पर जो कहीं और से सीख के आए होते हैं ना, उनको 1 महीने में पहले बुलाने में मेरे को टाइम लग जाता है. मैं भी वहाँ जो सीखा उसको भूल जाओ. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. वो मुझे वो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है. हाँ जी मैम वही प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप वो उसको ब्लैक आउट कर दोगे, फिर जो मैंने बताया समझ आ रहा है? यस मैम. हाँ बस फिर ठीक है, इजी हो गया ना. हाँ जी हाँ तो कंफ्यूजन खत्म होगी. ऑलमोस्ट मैम. नहीं, अभी कुछ रहती है 1% तो बताओ ना, उन्होंने क्या बोला आपको? मैम लाइक ना जिदा डिस्कस वाला सीगा. एग्री डिसएग्री करो. हाँ इसमें बताओ उन्होंने क्या बोला. एग्री और डिसएग्री तो लाइक आप फुली एग्री हो सकते हैं, फुली डिसएग्री हो सकते हैं, और ਆਪਾਂ 70% ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ PP1 बनावांगे ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਦਾ. मेरी गल सुन, 70 एग्री और डिसएग्री आप एक टॉपिक से नहीं कर सकते हो. अगर आप कहते हो कि म्यूजियम और आर्ट गैलरीज को लोकल वर्क दिखाना चाहिए, बाहर का नहीं दिखाना चाहिए, मैं एग्री भी हूँ और डिसएग्री भी हूँ, तो आप कह रहे हो कि म्यूजियम और आर्ट गैलरीज को 70% लोकल दिखाना चाहिए और 30% बाहर का दिखाना चाहिए. तो फिर तो एक तरह से आप डिसएग्री हो गए ना. अगर बाहर का दिखा दिया तो डिसएग्री हो गए. आप कंफ्यूजन क्यों रख रहे हो? 30% आपको जिस सेंटर ने भी कराया वो गलत कराया है. देयर इज नथिंग लाइक परसेंटेज इन एग्री और डिसएग्री. यस मैम मैं ਉੱਥੇ कंफ्यूज है. तो मेरा ऐदा सीगा कि मैं आई थिंक सो मैं 1 मंथ ही लगाया, बट ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आया, फिर मैं लीव करता. नहीं वो समझा तो वो बहुत जल्दी देते हैं. मैम मेरे टेस्ट ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਕ क्वेश्चन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बट मैं आंसर कुछ और ही लिख दिंदी सीगी. मिस कोई बात नहीं, चलो ठीक है. अब आप क्लैरिटी ऑफ थॉट रखो. कुछ नहीं है डिफिकल्ट. देखो लॉजिकली सोचो. ठीक है, आपको किसी मैंने जो बताया आपको इसको चैलेंज कर लो. लॉजिकल है ना, बिल्कुल लॉजिकल है. आपको देखो, आप एक चीज से, अगर मैं आपको कहती हूँ चॉकलेट बहुत टेस्टी है, डू यू एग्री और डिसएग्री? आप ये थोड़ी कह सकते हो आई एग्री आल्सो एंड आई डिसएग्री. यस मैम. ठीक है, फिर आप ये कह सकते हो while dark chocolate is not so tasty, chocolate is, मतलब आपने कंसेशन दे दिया. बट मैं चॉकलेट पर टेस्टी है आपने कहा. ठीक है, एग्री करा है, तो वन साइड ही जा सकते हो ना. एक ही चीज से एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते हो. यस मैम. यू कैन ऑलवेज गिव ए कंसेशन. एंड कंसेशन देने का भी मतलब है कि आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, पर दूसरी साइड को थोड़ा कंसेशन दे रहे हो. ठीक है, आप ना हमारे वो वीडियोस देखना जो हमने 15 सेंटेंसेस वाले बनाए हैं. Writing or discuss essay in 15 sentences, write and agree disagree essay in 15 sentences, write an advantages disadvantages essay in 15 sentences, write a problem solution essay in 15 sentences. उनमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा है कि आपने कैसे हैंडल करना है. मैम ये कहाँ से मिलेगी वीडियो में? ये बेटे मेरी वेबसाइट पे एक ही लिंक से आपको सारे YouTube के लिंक्स मिल जाएंगे. ओके मैम. हाँ,
तो makkadials.com है वेबसाइट, और वहां से सारे यूट्यूब के लिंक्स मिल जाएंगे एक एक ऐसे के। उनको 2-2 3-3 बार बड़े लोगों ने कमेंट किया कि सिर्फ वही देख के गए थे और राइटिंग में 7 आ गए। Just go through them, all your confusions will go, because वो बहुत साइंटिफिकली और लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है, आपको पढ़ के लगेगा ही नहीं अच्छा ये इतना इजी था, हम ऐसे इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। यस मैम, मेरी भी कंफ्यूजन मैम उसी से दूर हुई है। उसी से दूर हुई है ना? यस मैम, मुझे लाइन ग्राफ में भी इतनी दिक्कत आ रही थी ना, तो उसी से मैंने अपना किया और मेरे एसेस भी बिल्कुल ठीक हो रहे हैं अब तो। ठीक हो रहे हैं ना? देखो वही मैं कह रही हूँ, कुछ भी नहीं, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। यू जस्ट Yes. वॉच दोस वीडियोस 2 to 3 टाइम्स। ठीक है? यस मैम। हाँ। अच्छा, अब इसमें वाइल सेंटेंस कौन बनाएगा? पहला तो हमने कर लिया था ना, वी वर ऑन। मैम आप सबको म्यूट कर दो ना। Yes, there is lot of Okay, who will make the while sentence? Aisha, will you try? Himmatveer, will you try? इंद्रजीत, अपने आप को अनम्यूट करके ट्राई करो भाई। Ma'am, do I need to paraphrase this? Yes, paraphrase and then make the while sentence. Okay, I'll try my level best. Many countries construct modern buildings to give a good view of town and cities. Some people say that countries should make new buildings with traditional style to preserve their culture as part of their identity. Do you agree or disagree? So basically in this question it is asking कि जो countries बना रहे हैं, जो modern buildings है, वो towns और cities जो है, वो traditional जो style है, हमारा culture है, उसके हिसाब से बनाना चाहिए। तो आप अग्री करते हो या नहीं करते कि बनना चाहिए कि नहीं ट्रेडिशनली स्टाइल में या नहीं? जो है ना, जो पहला सेंटेंस है वो तो उन्होंने फैक्ट दिया है कि जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाती हैं कई कंट्रीज, वो इसलिए बनाती हैं कि उनकी सिटी या टाउन को बहुत अच्छा व्यू मिले। पर कुछ लोग कहते हैं कि कंट्रीज को जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं ना अब, उनको ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाना चाहिए ताकि उनका कल्चर प्रिजर्व हो और उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व हो। ठीक है? क्या आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? ये ठीक है? हाँ। सो अब मैंने जो ऐसे बनाया ना, मैंने टोटली एग्री करके बनाया है, पर इसको वाइल के साथ आप कंसेशन देके बना सकते हो। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कोई जना वाइल सेंटेंस ट्राई करेगा? वाइल विल नॉट मीन आप एग्री भी कर रहे हो और डिसएग्री भी कर रहे हो। वाइल का मतलब है कि आप आइदर एग्री कर रहे हो, आइदर डिसएग्री कर रहे हो, पर दूसरी साइड को थोड़ा सा कंसेशन दे रहे हो। Shall I try, ma'am? Yes. While it is important for any nation that they should preserve, they should construct a modern building to preserve or to showcase their culture. But मॉडर्न बिल्डिंग थोड़ी प्रिजर्व करेगी कल्चर को। नहीं, वाइल इट इज, हाँ दोबारा बोलो इंद्रजीत, दोबारा ट्राई करो। while it is important for it is important for a countries that they should make a building with that old tradition to preserve or to showcase their culture. But they should, but I believe that they should also give some, but they should also give some I should say, ma'am. अच्छा देखो, किसी और ने ट्राई करना है फिर मैं बताती हूँ। एक मिनट, मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ, अब अनम्यूट करो। एनीबॉडी हु वुड विश टू ट्राई? Ma'am, shall I? Yes. Yeah. While it is an important thing to build our society based on our culture, however, on the other side, it is also important to build modern cities, towns. Okay, modern buildings. सिर्फ buildings की बात हो रही है। Anybody else who would like to try? Ma'am, shall I? Yes, Siddhant, come. While it is important, while it is believed by many of the countries to. It is believed तो paraphrasing वाला है ना? अच्छा ठीक है। वो paraphrasing। अब आप while वाला sentence बनाओ जो आपका का बनाना है। हाँ। While many countries construct modern buildings to give a नहीं good view. ये तो paraphrasing है, ये paraphrasing है। ये देखो, आप पहले paraphrasing कर लो फिर आप बनाओ ये sentence, तब आपको clarity होगी। आप लिखो, it is true that modern buildings are constructed to give aesthetic appeal to towns and cities। ये होगी paraphrasing पहली लाइन की।
Okay, too. ma'am. Then after that, while some people believe that countries should make new buildings with traditional style in order to preserve their culture as their part of identity. नहीं नहीं, ये गलत हो गया। मैं आपको मैं बनाऊं? हाँ बनाओ। I will try. हाँ ट्राई करो। हाँ Ma'am, can I? यस यस, कैन क्यों, कैन तो कर ही सकते हो। हाँ ठीक, हाँ। The traditional building must keep in the modern cities, while the new architectural building also to be ऑल्सो कर रहे हो ना, फिर आप established. मिडवे जा रहे हो। देखो आपने, अगर आपने इससे एग्री करना है टोटली कि मॉडर्न, जो आपने डिसएग्री करना है, फिर आप लिखो व्हाइल इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ट्रेडिशन, I believe new buildings should be made in the modern style. Yes, new building should be made in the new modern building style. should be made to attract the cities. नहीं attract but को छोड़ो, आप देखो पहले इसको पहले इसकी हिंदी करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। टॉपिक है कि बहुत सारी कंट्रीज मॉडर्न बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं ताकि उनके शहरों को अच्छे व्यू मिले, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो नई बिल्डिंग्स है, जो सिटीज में नई बिल्डिंग्स बननी है ना, वो पुराने स्टाइल से बनाए ताकि उनका कल्चर प्रिजर्व होए, ठीक है। अब मैंने while I believe that culture needs to be preserved, I do not agree that new buildings should be made in the traditional style. समझ गए? Even the combination of the traditional and the new new building will be much better, because you know in our cities, I am outside the country, in our cities there are some traditional buildings they preserved, but in nowadays it is a big discussion is going on that view is not suitable for the city, so they are renovating that such buildings into the combination of the new. हाँ, अब मेरी बात सुनो। ये लोग कह रहे हैं, आपने कहना है while preserving culture is important, new buildings should be made in the modern style. इसका पता है क्या मतलब है? कि कल्चर प्रिजर्व करो, कि जो कुछ पुरानी बनी हुई है उनको सही रखो, उनको मेंटेन कर लो, पर जो नई बनाओ वो मॉडर्न ही बनाओ। तो आपने टोटली डिसएग्री कर, नई बिल्डिंग्स बनाने की बात हो रही है ना, नई बिल्डिंग को मॉडर्न बनाओ और फिर एक पैरा बना दो पुरानी को क्यों प्रिजर्व करना है, नई को क्यों मॉडर्न बनाना है, और नई को ट्रेडिशनल बनाने के क्या नुकसान हो जाएंगे। समझ गए? मैम मैं बता सकती हूँ? हाँ बनाओ। मैम while countries should construct modern building to look different from other country, I believe that transitional building to save our culture. और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜਗਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ डाइग्रेस कर रहे हो, हम नई बिल्डिंग्स बनाने की बात कर रहे हैं। जो अभी जैसे आपका शहर है फगवाड़ा है, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ फगवाड़ा है, इसमें नई बिल्डिंग कोई बननी है, कोई नया जैसे कोई म्यूनिसिपल कमेटी की बिल्डिंग बननी है, कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बननी है, स्टेटमेंट कह रही है उसको पुराने स्टाइल से बनाओ, हवेली के स्टाइल से, जैसे पुरानी हवेलियां होती थी। मैंने ये किया है कि मैंने उससे डिसएग्री कर दिया, मैंने कहा जो नई बननी है वो नए स्टाइल से ही बनाओ, अगर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं शहर में उनको प्रिजर्व कर लो कल्चर प्रिजर्व करने के लिए, पर जो नई बननी है उनको नए स्टाइल से ही बनाओ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप थोड़ा खिचड़ी पकाओगे इससे में। टॉपिक की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, आपके मन में हो। फर्स्ट लाइन तो फैक्ट है, फर्स्ट लाइन तो फैक्ट है। उन्होंने कहा है कि सिटीज बनाती हैं नई बिल्डिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो नई बिल्डिंग बनानी वो पुराने स्टाइल से बनाओ। आपको पता है पुराने स्टाइल की बिल्डिंग है वो कितनी जगह घेरती है अननेसेसरीली, ठीक है। उनकी 9 इंच की 14 इंच की दीवारें, आजकल 9 इंच की दीवार चलती है, और कई घरों ने तो 4 इंच की दीवारें कर दी है अंदर, क्योंकि वो ईंटों के अंदर वो इंसुलेशन वाले खाली है तो उनसे आवाज नहीं जाती दूसरे रूम में, चाहे थिन वॉल्स हो, ठीक है। तो अब ये सब हो रहा है। अगर मॉडर्न क्योंकि अब मॉडर्न बिल्डिंग्स को मॉडर्न स्टाइल से बनाने के फिर फायदे लिख लो इस बारे में, अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगी। हाँ, या बिल्कुल। फिर और वैसे भी आप कहो कि जगह कम है, ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है, स्काई स्क्रेपर्स बनाओ, ऐसी चीजें बनाओ। पुरानी बिल्डिंग्स जो इतनी जगह घेरती है उनको बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। यस, तो आप ये बना सकते हो ऐसे। जगमीत समझ आ गया? यस मैम। और जगमीत जैस नहीं है, वाई से बोलो। ओके बोलो
यस मैम, ओके। और दूसरा ma'am. आपने कंट्रीज की प्रोनाउंसिएशन गलत की थी मैम synonym of construction. कंस्ट्रक्शन इज Build. बिल्ट Build, made. हाँ, सिनोनिम होता है, सिनोनियम नहीं होता। ये भी बहुत Synonym. बड़ी गलत होती है, सिनोनिम। Okay. सिनोनिम, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया। अगर ये अब ऐसे आए तो इसमें खिचड़ी नहीं पकानी है। मैंने तो टोटली एग्री करके बनाया है। अभी मैं आपको ये ऐसे पढ़ा के करा दूंगी। आप टोटली आप डिसएग्री कर सकते हो कंसेशन के साथ कि कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर लो, पर जो नई बननी है वो मॉडर्न स्टाइल से ही बनाओ, ठीक है। कल्चर तो उससे भी प्रिजर्व हो जाएगा ना, जो एक दो पुरानी है उनको बचाने से भी प्रिजर्व हो जाएगा। जैसे हमारे सिटी में एक म्युनिसिपल कमेटी बिल्डिंग है जो महाराजा जगजीत सिंह का घर था, उसी को उन्होंने इन द म्युनिसिपल कमेटी बिल्डिंग कन्वर्ट कर दिया, उसको तोड़ा नहीं है, उसको प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। अब हिस्ट्री तो उससे प्रिजर्व होगी, पर जो नई बिल्डिंग्स बननी है अगर उनको भी ऐसे बनाएंगे तो जगह ही नहीं बचेगी। आप उसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो नई बिल्डिंग्स नए स्टाइल से ही बनाओ, पुरानी वालियों को प्रिजर्व कर लो, जो कुछ है जो आइडेंटिटी देनी है, जो टूरिज्म बढ़ा सकते हैं उनको प्रिजर्व कर लो। पर जो नई बिल्डिंग्स है उसके साथ आप जो है वो डिसएग्री करो कि पुराने स्टाइल से नहीं बनानी चाहिए, नए स्टाइल से ही बनानी चाहिए, ठीक है। ये अब ये ऐसे आया तो अब कर लोगे ना हैंडल अच्छे से? यस मैम। हाँ जी मैम, ऐसे मींस जैसे आपने बताया था कि while preserving the old building is very necessary, but new buildings should be built in the modern style. आपने डिसएग्री कर दिया? यस मैम। अब मीनू समझ आ गई ना बात? मैंने जो मेन क्वेश्चन है कि न्यू बिल्डिंग्स को पुराने स्टाइल से बनाओ, उससे डिसएग्री कर दिया। मैम इसका मीन्स डिसएग्री हो गया, मीन्स फिर हमें ज्यादा पॉइंट न्यू बिल्डिंग्स का देना है और जो प्रिजर्विंग वाला है वो फर्स्ट पैरे में देना है। वो पुरानी कोई बिल्डिंग है उस टाउन में, उसको प्रिजर्व करो, वो बहुत जरूरी है, कल्चर उससे प्रिजर्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैम सिनोनिम ऑफ मॉडर्न कंटेम्पररी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी रीना बोलो। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये इंट्रोडक्शन में लाइन लिखी हुई है लास्ट वाली, हाँ, इसकी हिंदी क्या बनती है फिर मैम? इसकी हिंदी बनती है ये उसने टोटली एग्री करा है। उसने कहा है कि जो नई बिल्डिंग्स बनानी है वो ट्रेडिशनल स्टाइल से ही बनाओ। गवर्नमेंट जो है पहली लाइन कह रही है ना, गवर्नमेंट नई बना रही है, मॉडर्न बिल्डिंग्स बना रही है। पहली लाइन जो फैक्ट दी है वो यही है ना कि मेनी कंट्रीज मॉडर्न बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। यस मैम। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो कह रहा है कि अगर जो मेरा मानना है कि न्यू बिल्डिंग्स को ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाना चाहिए। जो बेनिफिट्स है, जो मेरा मानना है कि जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट का जो झुकाव है मॉडर्न बिल्डिंग की तरफ उसको चेंज करने के लिए बहुत है, वारंट करता है चेंज, उसको जस्टिफाई करता है कि चेंज करे अपना गवर्नमेंट झुकाव नई बिल्डिंग्स को मॉडर्न स्टाइल से बनाने का और ट्रेडिशनल साइड से बनाए। ट्रेडिशनल मॉडर्न सिनोनिम बता दो। मॉडर्न कंटेम्पररी। ओके मैम। आज का मॉडर्न जो है मतलब इस ऐसे में तो आपने एग्री किया हुआ स्टेटमेंट। मैंने तो एग्री करा हुआ है, मैं तो बता ही जा रही हूँ कि इस ऐसे में एग्री करा हुआ है। पर आप वाइल देके कि वाइल कल्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है, नई बिल्डिंग को मॉडर्न स्टाइल से ही बनाना चाहिए करके भी डिसएग्री करके भी अच्छा ऐसे बना सकते हो। ओके मैम। यस मैम इसको जैसे ये डिस्कस करते हैं हमें उसकी हर चीज को डिस्कस करना चाहिए कि अच्छा अगर आप ऐसे करते हो वो भी अच्छा ऐसे है, ठीक है, that is also a good essay. You get my point? You see, you will get any new topic. You can get any new topic in the exam. आपको अपने thought process दोहराना आना चाहिए। मैम इसमें ये लाइन ऐसे लिख सकते हैं जैसे वाइल लिख के आया एग्री दैट करके, फिर ये जैसे यहाँ से स्टार्ट करके कंट्री शुड मेक न्यू बिल्डिंग्स विद ट्रेडिशनल स्टाइल करके यहाँ स्टॉप करके ये प्रिजर्व देयर कल्चर। सो उसके बाद जैसे आई आल्सो बिलीव दैट वाइल कैसे कहाँ लगाया आपने वाइल? जैसे वो पैराफ्रेज करके तो फिर वाइल लगा के जैसे वाइल आई एग्री दैट कि कंट्री शुड मेक न्यू बिल्डिंग्स विद ट्रेडिशनल स्टाइल टू प्रिजर्व देयर कल्चर। उसके बाद आई आल्सो बिलीव दैट कि उनको पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो पुराने ट्रेडिशन वे से बनी हुई है उनको ही मतलब कि मेंटेन करके रखना चाहिए। वही मतलब कि सेंटेंस ऐसे करके बना दो। वो तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, पुरानी बिल्डिंग्स को मेंटेन करना तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना। हाँ जी,
मैम फिर 22 वाला बनाना मैम फिर किਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? मैं दस रही है ना, while it is important to preserve culture and tradition, I do Yes, not agree that new buildings should be built in the old styles. ओके मैम। नहीं मैम, ये लाइन ऐसे करके कि उनको मैम- मेंटेन कर लो पुरानी बिल्डिंग वो आप अपनी उसमें करो ना, why don't you give that in your paragraph कि उनको मेंटेन कर लो। अगर ट्रेडिशन आर्ट, उसको इंट्रोडक्शन में क्यों ला रहे हो, उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? मैंने आपको छोटा सा सेंटेंस दिया है, छोटे सेंटेंस 7 प्लस पे जाएगा। जितना आप लंबा करोगे उसमें कुछ और घुसेड़ोगे, आपका सेंटेंस खराब हो सकता है। समझ गए? मेरा ये सेंटेंस आपको, while it is essential to preserve tradition and culture, I disagree that modern buildings should be made in the traditional style. समझ गए? मैम ये सेकंड सेंटेंस है ना इंट्रोडक्शन का। हाँ सेकंड है। अब देखो आपने डिसएग्री कर दिया कि मॉडर्न बिल्डिंग्स को ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं बनाना चाहिए, फिर पहले तो ट्रेडिशन आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना है, उसमें कह दो एडमिटेडली इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ ए प्लेस and that can very well be done by preserving the already present old buildings over there. समझ गए? समझ आ रहा है मेरा फर्स्ट लाइन कि ऑलरेडी प्रेजेंट ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके भी ट्रेडिशन एंड कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो ना। आप अपनी सिटी की किसी ओल्ड बिल्डिंग की एग्जांपल दे दो जो यूज हो रही है, अभी अच्छे से प्रिजर्व हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया फगवाड़ा में म्युनिसिपल कमेटी की बिल्डिंग है, कपूरथला में सैनिक स्कूल है जो वो महाराजा रंजीत सिंह का घर था। ठीक है, अब स्कूल है वैसे का वैसे ही प्रिजर्व करा हुआ, उसी में अब खालसा कॉलेज है अमृतसर का, यस मैम, हिस्टोरिक बिल्डिंग है, वो भी प्रिजर्व्ड है ना, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉलेज। यस मैम। ठीक है, तो आप ऐसे कह दो कि कुछ जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको प्रिजर्व कर लो, ट्रेडिशन एंड कल्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है, पर किसी ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व कर लो, नई बिल्डिंग को नए स्टाइल से ही बनाओ। समझ गए? नई बिल्डिंग को पुराने स्टाइल से बनाना है, उससे एग्री करना है कि डिसएग्री करना है। समझ गए? एग्री करके भी बना सकते हो, जो मैंने अभी बनाया हुआ है इस एस्से में, कि जो नई बिल्डिंग बनानी है पुराने स्टाइल से ही बनाओ। ठीक है, और मैंने पूरे 3 पैरे बनाए हुए हैं उसके। वन साइडेड ऐसे भी बन सकता है ना, जो मैंने बनाया है। वाइल लगा के कंसेशन दे दिया कि ट्रेडिशन और कल्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है, पर नई बिल्डिंग्स को नए स्टाइल से ही बनाओ। इससे क्या हो गया? मैम हेलो, बताओ मैम कैन यू म्यूट एवरीवन? आपने भी म्यूट हो जाना था, इसलिए मैं उस टाइम नहीं कर रही थी, पहले मैंने आपकी बात सुन ली थी, करने लगी थी म्यूट। ओके यस मैम, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर इन पैरा 1 इफ वी जस्ट से कि हम अग्री करते हैं कि जितनी भी नई बिल्डिंग जो बनेगी वो मॉडर्न स्टाइल में बने, एंड इन द सेकंड पैरा इफ वी से कि हम जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसको भी प्रिजर्व करके रखें, सो पैरा 3 में सो मेरा ऊपर वाला स्टेटमेंट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट ये क्या वाइल में जाएगा या ये प्योर अग्री स्टेटमेंट है? आयशा एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला है? एग्री करा कि पुरानी नई बिल्डिंग को नए स्टाइल से बनाए? नहीं, अब पैरा 1 में जस्ट मैंने इतना बोला है कि जो नई बिल्डिंग जितनी भी बन रही है वो मॉडर्न स्टाइल में बननी चाहिए। हाँ। और पैरा 2 में मैंने बोला है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ, बस यही तो मैं कह रही हूँ, यही मैं कह रही हूँ। देखो मैंने ये बोला है कि ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर लो, पर जो नई बिल्डिंग्स है उसको पुराने स्टाइल से बनाने से मैंने डिसएग्री करा है। मैंने कहा कि I was just thinking, I was just thinking what should be added in para 3. मैं वही बता रही हूँ ना, पैरा 3 में डालो कि जो नई बिल्डिंग्स हैं उनको पुराने स्टाइल से बनाने के क्या नुकसान होंगे। पैरा 2 में नई बिल्डिंग स्टेटमेंट है ये वाइल होगा और अग्री होगा ये पूरा नहीं। फर्दरमोर मोरओवर देयर विल बी डिसएडवांटेजेस ऑफ मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स इन द ट्रेडिशनल स्टाइल। देखो न्यू बिल्डिंग्स को न्यू स्टाइल से क्यों बनाना है, मॉडर्न स्टाइल से क्यों बनाना है, एक पैरा बना दो। फिर अगर आप एक और पैरा ऐड करना है, अगर 5 पैरा इससे बनाना है, तो आप ये भी तो डाल सकते हो कि नई बिल्डिंग्स को पुराने स्टाइल से बनाने के डिसएडवांटेज होंगे। ट्रेडिशन कल्चर को तो आपने प्रिजर्व कर लिया पुरानी बिल्डिंग्स को मेंटेन करके। इज दैट क्लियर? यस इट्स एब्सोल्युटली। हाँ देखो, एक पैरा हमने बना दिया कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनको प्रिजर्व करो तो कल्चर प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड एंड थर्ड पैरा यू विल मेक व्हाई मॉडर्न बिल्डिंग्स शुड बी मेड इन द मॉडर्न स्टाइल। एक पैरे में अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, वैसे पॉइंट्स ज्यादा हैं इस चीज के, आपके 2 पैरे में। हेलो मैम। यस
यस, ओके, तो नहीं तो एक पैरे में आप डाल दो व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेकिंग मॉडर्न बिल्डिंग्स इन द ट्रेडिशनल स्टाइल। पहले तो मॉडर्न बिल्डिंग्स को ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाने के लिए ट्रेडिशनल मटेरियल बहुत मुश्किल मिलेगा। अब पहली बिल्डिंग्स बनती थी ना ट्रेडिशनल मटेरियल से, जो आजकल तो नए मॉडर्न मटेरियल्स आ गए हैं, वो इजीली अवेलेबल है। पुराने मटेरियल्स को लाना भी मुश्किल हो जाएगा, प्रोक्योर करना, जो मार्बल लगता है, पत्थर लगता है, या जो चीज़ें रेड स्टोन लगा है कई बिल्डिंग्स में, वो आजकल मिलता नहीं है। देन सेकेंडली पुरानी जो ओल्ड स्टाइल की बिल्डिंग्स है, अगर आज हम वैसी बनाएंगे तो हमें बहुत जगह चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग्स ज़्यादा जगह घेरती थी, ठीक है, तो वो आज के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, तो हमें जगह की वैसे ही शॉर्टेज हो रही है, तो हमें खुली खुली बिल्डिंग्स अब बनाने का कोई सेंस ही नहीं है पुराने स्टाइल की। तो एक ये भी पैरा डाल सकते हो ना आयशा, इज दैट क्लियर? आई थिंक यस मैम, थैंक यू। हाँ, और नहीं तो आप 2 पैराग्राफ्स में नई मॉडर्न बिल्डिंग को नए स्टाइल से बनाने के फायदे भी 2 पैराग्राफ्स में स्प्रेड कर सकते हो, उनके फायदे ही बहुत है, ठीक है। So I was just thinking कि अगर मैं अग्री भी कर रही हूँ, देन डिसएडवांटेज भी बता रही हूँ, एंड देन ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी बता रही हूँ कि न्यू कल्चर जो है, न्यू टाउन जो है वो बन रहे कर रहे हो, तो आप एग्री ही कर रहे हो ना, डिसएडवांटेज एग्री में ही आ रहे हैं आपके, आप एग्री ही कर रहे हो, जो डिसएडवांटेज लिख रहे हो वो आपके एग्री को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। आपने एग्री करा कि मॉडर्न बिल्डिंग को मॉडर्न स्टाइल से बनाओ, तो जो डिसएडवांटेज लिखे हैं वो मॉडर्न बिल्डिंग को ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाने के ही लिखे हैं ना, तो आप यही कह रहे हो ना मॉडर्न स्टाइल से बनाओ। जो आप डिसएडवांटेज लिख रहे हो वो आपके पॉइंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। यस मैम, इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। तो आप वैसे अब अगर ये ऐसे वन साइडेड जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें 3 पॉइंट्स मैंने डाले हैं एग्री करके। मैंने कहा है कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग जो है टूरिज्म प्रिजर्व, ये सबसे पहला रीजन है, देयर आर मेनी रीजन। सो फर्स्ट रीजन मैंने दिया है कि कंट्री की पास्ट कल्चर और लोगों की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है, और अगर ये हम ऐसे नहीं करेंगे सारी दुनिया एक सी लगने लग जाएगी और डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का ये मैंने एक फायदा दे दिया। सेकेंडली टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, एंड थर्डली ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का मैंने जो रीजन डाला है कि जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है वो सॉलिड है, ड्यूरेबल है। अभी देखो कई बिल्डिंग्स है पुरानी जो 200 300 साल पुरानी है और खड़ी है, जो मॉडर्न बिल्डिंग है वो तो 200-300 साल नहीं चलने वाली, ऐसा मटेरियल ही नहीं लगता मॉडर्न बिल्डिंग्स में, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो जिस चीजों से बनी है वो एक्सपैंड और श्रिंक नहीं होते टेम्परेचर चेंज से। आजकल की जो बिल्डिंग्स हैं मॉडर्न मटेरियल लगते हैं, जिनमें ग्लास है, प्लास्टिक है, कंक्रीट है, तो ये मॉडर्न मटेरियल की तरह एक्सपैंड और श्रिंक नहीं होते हैं टेम्परेचर चेंजेस से, ठीक है। और ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स को मच लेस मेंटेनेंस एंड रेनोवेशन कॉस्ट लगती है। ये मैंने वन साइडेड जाके ये पॉइंट्स दिए आपको, पॉइंट सारे सही है। मैम हाँ बोलो। मैम समटाइम लाइक जो पैरे की प्लानिंग करते हैं ना पैराग्राफ्स की, मैम उसमें डिफिकल्टी आती है। देखो जो है ना, अगर आप वन साइडेड ऐसे के आपके पास 3 पॉइंट हैं तो आप ना वन साइडेड बनाना, एग्री डिसएग्री, उसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। अगर आपके पास 3 पॉइंट नहीं है तो फिर आपको एक वाइल वाला सेंटेंस सोच के दूसरी साइड के लिए एक पैरा बनाना है। ओके मैम, ठीक है, और वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा वो, प्लीज मैम। ठीक है, वो कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी और इजी है। मैंने बहुत साल कराया नहीं कि बच्चों से होगा नहीं, पर हमने देखा करके बहुत बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस करके इसको बहुत अच्छा लिखने लग जाते हैं, एंड ओवरऑल बैच को राइटिंग का हमारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा है। प्लीज मैम। ठीक है, लाइक दैट। आई होप दिस essay is clear. Should I move forward? There are more new towns being built nowadays. It is more important to include public parks and sports facilities than shopping centers for individuals to spend their free time. अब ये देखो बहुत से नए टाउन्स बनाए जा रहे हैं और पब्लिक पार्क्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऐड करनी जरूरी है, लोग अपना फ्री टाइम स्पेंड करें। टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री? मतलब पब्लिक पार्क्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऐड करो, ना कि शॉपिंग सेंटर्स ऐड करो, उनकी जगह पे पब्लिक पार्क्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऐड करो। तो इसके साथ आपको एग्री और डिसएग्री करना है,
ठीक है, इसमें हम बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट कर सकते हैं ना. हाँ. Ma'am, can we use the while sentence in this? Because I think the shopping centers are equally important. हाँ बिल्कुल, आप वाइल सेंटेंस बना के रख सकते हो. देखो ये क्वेश्चन कह रहा है दैट देयर आर मोर न्यू टाउन्स बीइंग बिल्ट, नए टाउन्स बनाए जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक पार्क्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दैन शॉपिंग सेंटर्स जो है इन टाउन्स के अंदर बनाई जाएं ताकि लोगों का फ्री टाइम जो है अच्छे से स्पेंड हो. ठीक है, I believe, मैंने ये इंद्रुप ने लिखा है अभी ऐसे, I believe that having gardens and sports complexes inside town boundaries is more beneficial for the residents. तो उसने totally agree करके बनाया. ठीक है, और फिर उसने ये लिखा है कि जो शॉपिंग सेंटर्स है वो शहर के बाहर भी बनाए जा सकते हैं, बाउंड्री के अंदर नहीं, बाहर बनाए जा सकते हैं. ठीक है, और उसके भी फायदे दे दिए. बाहर बनाने के क्या फायदे हैं? सबर्ब्स में बनाओ, अंदर ना बनाओ, क्योंकि टॉपिक कह रहा है कि पब्लिक पार्क्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नए टाउन्स के अंदर बनाओ दैन शॉपिंग सेंटर्स. अब आप देख भी लो, शॉपिंग सेंटर्स जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं हमेशा शहरों के बाहर ही बनते हैं. आउटलेट मॉल्स हैं या कोई ऐसे मॉल्स हैं, वो शहर के बीचों बीच तो नहीं देखे ना आपने, कहीं बाहर बाहर ही होते हैं ना. तो एक तरह से ये एग्री कर दिया कि वो चीजें अंदर बनाओ. पर आप बिल्कुल सही हो, आप वाइल करके इसका बहुत अच्छा बना सकते हो. While public parks and sports facilities are important, shopping centers are equally important. Important. सारे Yes. बनाने चाहिए, वो भी बहुत अच्छा इससे बनेगा. ठीक है, that will be easier for you to handle and very good. ठीक है, ये सारी बात कुछ कर रहे हैं, राय लेते ना. Okay. मैं क्या, मैं कल सारी कर आया रेफरेंस लेके ऐसी. ओके. अब ये वाला ऐसे जो है, ये वाला ऐसे आप इसको अभी आपको समझ आ गया. जो आप वाइल कह रहे हो वो करेक्ट है, वाइल बना के भी बना सकते हो. इज दैट ओके कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट करके आप अपना ऐसे बना दो कि पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड शॉपिंग सेंटर सब कुछ ही होना चाहिए और तीनों के फायदे का एक एक पैरा बना दो. बहुत अच्छा ऐसे. Yes. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसे है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए बिल्डिंग टू सर्व अ पर्पस देन टू लुक ब्यूटिफुल. Architects should not worry about producing a building as a work of art. तो हमारे ग्रुप में आर्किटेक्ट है कोई इस टाइम? है आर्किटेक्ट, पर आज वो एब्सेंट है ग्रुप से, क्लास से. ओके, तो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी बिल्डिंग को यूटिलिटेरियन होना ज्यादा जरूरी है सुंदर होने से. ठीक है, इसलिए जो आर्किटेक्ट है उनको ना कोई बिल्डिंग जो है वर्क ऑफ आर्ट बनाने पे जोर नहीं देना चाहिए, सिर्फ उसकी यूटिलिटी पे जोर देना चाहिए. क्या आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? यूटिलिटी. हाँ, मैंने बोला है कि आई डिसएग्री करती हूँ कि आर्किटेक्ट्स को कोई एफर्ट नहीं रखनी चाहिए बिल्डिंग को सुंदर बनाने में. मेरा मानना है कि आर्किटेक्ट्स को करना चाहिए और कर भी सकते हैं. उनके पास इतनी एक्सपर्टाइज है कि किसी भी बिल्डिंग को सुंदर भी बनाए और यूटिलिटेरियन भी बनाए. दोनों चीजें होनी. Yes. हम वाइल के साथ बना सकते हैं ना कि वाइल इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू लुक अ बिल्डिंग वेरी नाइस, एज वेल एज, नहीं मैं एज वेल या ना वाइल देना, बट while it is important for a building to serve a purpose, it is also very important for the building to look beautiful. Yes ma'am. ठीक है, यही है ना? Yes ma'am. हाँ, जितना सिंपल सोचोगे उतना अच्छा सेंटेंस करेक्ट निकलेगा मीनू. Okay, while it is important for a building to serve a purpose, comma, it is also very important to look beautiful. Okay ma'am. ठीक है. Yes ma'am, पर्पस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Utilitarian. While it is important for a building to be utilitarian, it is also very important for the building to look beautiful, to be soothing to the eyes. Okay? अच्छा, जो बिल्डिंग आईज को सूदिंग नहीं है और वो आंखों को खटकती है, उसके लिए एक वर्ड है, unpleasant. हाँ, visual pollution. What is visual pollution? विजुअल पोल्यूशन पता है क्या? आज नया, ये एक नई टर्म है. जैसे किसी बहुत अच्छी ग्रीन एरिया में कोई फॉरेस्ट है या रेन फॉरेस्ट है, वहां बीच में कोई जना अपना 5 स्टार होटल बना दे और वो अच्छा. दूर से अखरेगा ना, क्या ग्रीनरी सारी बीच में से कट गई,
ठीक है, ऐसी चीजों Yes. विजुअल पोल्यूशन कहते हैं आजकल। ओके, अच्छा। हाँ, पर ये वाला जो ऐसे है ना, ये इसको ऐसे बनाया है कि जो कोई भी बिल्डिंग है उसको यूटिलिटेरियन जहाँ होना जरूरी है, वहाँ ये भी बहुत जरूरी है कि वो सुंदर लगे। आपने एक ऐसे में आज हमने डिस्कस करा है ना, आर्ट वर्क्स का क्या फायदा है, लोगों को प्लेजर देते हैं, लोगों के स्ट्रेस रिमूव करते हैं, है ना। तो आप ये लिख सकते हो, अगर बिल्डिंग सुंदर होगी तो लोगों को अच्छी लगेगी, प्लेजेंट लगेगी, लोगों का स्ट्रेस रिमूव होगा। लिख सकते हो ना, शहरों में सुंदर बिल्डिंग्स होंगी तो ये फायदा है। तो बिल्डिंग कोई भी जो बनेगी उसको सुंदर होना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका पर्पस जरूरी है, जितना उसका काम जरूरी है, जिस काम के लिए वो बनी है। ठीक है, समझ आ गया इससे? ठीक है। और मैंने लिखा है कि गुड आर्किटेक्ट को जो 3 फंक्शंस होते हैं किसी भी बिल्डिंग के, एक होता है ड्यूरेबिलिटी, एक होती है यूटिलिटी, एक होती है ब्यूटी। कोई भी बिल्डिंग है उसके तीन मेन चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी ये नहीं है कि आज बिल्डिंग खड़ी की है कल ढह जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। हाँ, ये शैलजा है जिसका फोन ना शायद मतलब कहीं पे घूम रहा है, तो ऐसा बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मतलब अब ठीक है। यस। हाँ, तो कोई भी जो बिल्डिंग है ना, वो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी, ब्यूटी। ठीक है, ये तीनों 4 चीजें एक अच्छे आर्किटेक्ट का फर्ज है कि उसकी जो भी कोई बिल्डिंग वो बनाए उसमें ये तीनों चीजें पूरी हों। ठीक है, फिर मैंने सबसे पहले पैरे में लिख दिया कि जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है उससे डिबेट ये उठी है कि आजकल की बिल्डिंग जो है सिर्फ यूटिलिटेरियन हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें रह पाए, सुंदर ना हो। पर देखो हमारे पास स्काई स्क्रेपर्स हैं। स्काई स्क्रेपर्स पता है क्या होते हैं? स्काई बिल्डिंग्स, उनके ऊंचियां बिल्डिंग। एक गगन चुंबी इमारतें, ऐसी इमारतें जो गगन को ऐसे लग रहा है जैसे जो कोई किस कर रही है स्काई को, इतनी ऊंची। जो स्काई स्क्रेपर्स है वो कितने सुंदर दिखते हैं। यस। तो वो देखो, और ब्यूटी का भी पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी का भी सॉल्व कर रहे हैं। Like Burj Khalifa. Ma'am, हाँ, can I use one point in this? Yes. Like जो बिल्डिंग है वो सर्व पर्पस जो है वो सर्व बहुत few people को करती है, बट जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो पास बाय करते हैं उसको, मैक्सिमम लोग होते हैं वो, और वही एडमायर करते हैं बिल्डिंग की ब्यूटी को। हाँ बिल्कुल, पर जो लोग उसको यूज भी करते हैं उनको भी अगर बिल्डिंग ब्यूटीफुल है तो उनके वो रोज उस बिल्डिंग में जाते हैं, रोज उसको देखते हैं, तो उनको एक आईसोर नहीं होना चाहिए ना, उनको आईज को उनको अच्छा लगना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट स्ट्रेस फॉर देम। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग। हाँ, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ज्यादा लोग तो वहां से निकलते हैं उसको देखते हैं, तो इट शुड बी ब्यूटीफुल ऑल्सो। ठीक है, तो पहला मैंने ये लिखा है कि बर्जियनिंग पॉपुलेशन की वजह से ये डिबेट उठा था कि सिर्फ बिल्डिंग यूटिलिटेरियन हो, ब्यूटीफुल ना हो, पर आजकल के आर्किटेक्ट्स ने तो इस पॉइंट को प्रूव कर दिया है कि वो बिल्डिंग को यूटिलिटेरियन भी बना सकते हैं और ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। ठीक है, अगले पैरे में मैंने लिखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो नीड ऑफ द आवर है कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाई जाए, जो सोलर पैनल्स लगाए जाए। अब सोलर पैनल्स बड़े बड़े होते थे पहले, अच्छे नहीं होते थे, पर आर्किटेक्ट्स ने इनको भी बहुत अच्छा कर दिया, उनको वो सक्सेसफुल हो गए हैं इन डिजाइनिंग एस्थेटिकली अपीलिंग सोलर पैनल्स। देखो अब आप ये जो सड़कों के बीच में लाइटें लगी हुई हैं सड़कों में, वो सोलर पैनल्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं और रात को लग जाती हैं, और वो सोलर पैनल्स कितने सुंदर दिखने वाले लगे हैं, छोटे छोटे से। Ma'am, this has been done by researchers, not architects. चलो रिसर्चर्स ने करा है, पर आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके ही जो उन्होंने जगह जगह प्लान करी है, व्हाटएवर इट कम्स इन देयर रियल्म आल्सो ना। यस, आर्किटेक्चर इज आल्सो अ साइंस बेसिकली सारा कुछ ही मेरे को लगता है कि इट्स अ साइंस, बिकॉज उनको बहुत अच्छे से हर चीज देखनी है ज्योमेट्रिकली कि कोई बिल्डिंग कैसे रखेंगे तो गिरेगी नहीं, कहाँ से इसको लाइट आएगी, कहाँ से इसको हवा आएगी। सो इट इज नॉट जस्ट मैकेनिकल थिंग, इट्स यू नो वो ना मैम, साइंस। जो ये सोलर पैनल बनाते हैं ये भी तो आर्किटेक्चर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाते होंगे ना वही मैम? मैं कह रही हूँ ना, सो इट इज लिंक्ड, इट इज रिलेटेड। यस, रिलेटेड है ये चीजें। ठीक है, even Chandigarh is the main example. Every building is about 45 years old. हाँ, ओके,
तो बिल्डिंग सुंदर भी है, उन्होंने शहर ही ऐसा प्लान करा हुआ है, बिल्डिंग्स भी ऐसी प्लान करी हुई हैं कि वो अच्छी है। चंडीगढ़ का बेस्ट पार्ट है कि उसकी कोई भी जो बिल्डिंग है ना, उसका जो मेन डोर है वो मेन रोड की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। अगर आप कभी उस ये जाओगे नोट करना, नहीं तो कई शहरों में मेन बिल्डिंग्स का मेन रोड के ऊपर डोर होता है, तो वहां उनकी कारें कुरें पार्क होती है। इनकी कार सब अंदर को मिलेंगी, आपको मेन रोड पे नहीं मिलेंगी, शहर के अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये भी एक है उनकी बिल्डिंग्स का, चंडीगढ़ की जो डिज़ाइन है। ठीक है, फिर जो क्लाइमेट चेंजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं, उसमें भी ऐसी बिल्डिंग्स चाहिए जिनमें लेस एयर कंडीशनिंग हो और येट कूल रहे। ये भी हमने देखो, हमारे आर्किटेक्ट्स ने कितने अच्छे डबल ग्लास पैनल्स वाली बिल्डिंग्स बना दी। देखो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो ना, आगे ग्लास है और उसके अंदर फिर एक और पैनल ऑफ ग्लास है, उसमें जो हवा है ग्लास वॉल, इट इज कॉल्ड ग्लास वॉल। हाँ, उसको दैट एक्ट्स लाइक एन इंसुलेंट। ठीक है, वो इंसुलेंट का काम करती है, तो अंदर एयर कंडीशनिंग वगैरह कम चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरत थी मॉडर्न बिल्डिंग्स के लिए भी, यूटिलिटी भी दे और सुंदर भी लगे। तो ये भी हो गया, ये भी उन्होंने कवर कर लिया। तो मैंने यही बोला कि कर सकते हैं और करना भी चाहिए, कि एक्सपर्टाइज है उनके पास, तो बिल्डिंग को दोनों चीजें होनी चाहिए। मैंने डिसएग्री करा है कि ब्यूटी पे नहीं फोकस करना वुड बी रॉन्ग। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, अगर इंट्रोडक्शन पे वर्क करना हो अभी, तो फिर मैम हम लिख के आपको दिखा सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो, पर मैंने इस सैटरडे को स्पीकिंग बुक जो 4 महीने वाली आ रही है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसको फिनिश करना है। ठीक है, वो के लिए बहुत जरूरी है। और बस ये क्लास होने के बाद मैंने उस पर लग जाना है, और बहुत सारे क्यू कार्ड्स मिल गए हमें कल में। ठीक है, वो मैंने आज लिखने हैं, तो मैं आज अभी इस हफ्ते नहीं प्रॉमिस कर रही हूँ, बट यस मंडे से सारा चेक करूंगी आपका। ठीक है, हाँ मॉक टेस्ट मैं जरूर आपको दूंगी फ्राइडे को, मॉक टेस्ट विल बी चेक्ड, पर मैं वैसे होमवर्क नहीं आज भी दे रही हूँ। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ना, वो बुक बहुत जरूरी है ना, लोग उसकी बात कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं। अब वो क्यों कहते हैं योर फेवरेट, ऐसा कब तक आ जाएगी बुक? हाँ बस हमने आज शाम को या कल सुबह पूरी कर देनी, तभी मैं आज होमवर्क नहीं दे रही हूँ। ओके संडे तक वी आर ए टीम ऑन इट, बहुत पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है यस तो वो सभी लोग हैं। बेटे ने भी आज छुट्टी कर दी, he hasn't gone to the center, he's writing the cue cards. ओके मैम, आज और कल में सारे क्यू कार्ड्स पता चल जाएंगे मैम? हाँ पता चल गए ऑलमोस्ट। ओके मैम। हाँ वो बस आज मैम कुछ नए तो नहीं है ना, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, पर है ही है, 15-20 तो नए हैं। अच्छा तो मैम कुछ कटे भी है? कटे वाले नहीं पता चलते 1 महीना। ओके मैम। वो नहीं पता चलते, ये मैं आपको बोल दूं ये नहीं करो और वही आ जाए, फिर ऐसे नहीं होता, कटे हुए नहीं पता चलते। तभी तो मैंने सबको बोला था कि पहला वर्षन पूरा करके रखो, जो नए आएंगे आपको करा देंगे। ठीक है, और ऐसे नए नहीं है निराली, आप बोल पाओगे कुछ भी। ओके या तो आप डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करे हैं, रोज आपने स्पीकिंग दी है। हाँ मैंने रोज दिया है, और आपने क्यूकार्ड्स भी 2-2 भी सुनाए होंगे कभी कभी, तो आपके तो चार भी हाँ मेरे सारे पूरे हो गए। हाँ हो गए ना, तो फिर देखो आपको मैंने कल 3 करा दिए, और आपको आप बताओ फेवरेट बैग है वो भी है, और है कल मैंने आज और कल में कंप्लीट हो जाएगी फाइल। ओके मैम, नो वरीज, आपको मिल जाएगी। ओके अब ये देखो अगला ऐसे है, some people say that vertical city is best where people live and work in tall buildings. Others say that horizontal city is better where there are few tall buildings. Discuss both sides and give your own opinion. बड़ी बार ये ऐसे आया हुआ है। अब मैंने जब मैंने इसको वर्टिकल सिटी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो पता है क्या है, कि सिटी गोइंग वर्टिकली। इमेजिन करो एक सिटी है, जैसे फगवाड़ा है, ये ऐसे फैला हुआ है ना, हम जाते हैं अच्छा ये स्कूल है, फिर हम जाते हैं अच्छा ये कॉलेज है फगवाड़े में। तो आप इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जिसमें 10वें फ्लोर पे स्कूल है, 20वें फ्लोर पे कॉलेज है, तो लोग ऊपर नीचे ही जाते हैं राइट लेफ्ट नहीं जाते। वो ऐसी सिटी है जो वर्टिकल सिटी है। तो ये अभी तक साइंस फिक्शन में ही था, या शायद कहीं चाइना ने कोई बना दी हो। तो वर्टिकल सिटी का ये कॉन्सेप्ट है, पर एक्चुअली ऐसी बिल्डिंग तो अभी है नहीं। तो ये वर्टिकल सिटी से यहाँ हमने ये मतलब लिया है कि ऐसी सिटी जिसमें ज्यादा बिल्डिंग्स स्काई स्क्रेपर्स हैं, लंबियां, समझ गए?
वर्टिकल सिटी और हॉरिजॉन्टल सिटी। इन्होंने वर्टिकल सिटी को ऐसे लिख दिया जैसे वेयर पीपल लिव एंड वर्क इन टॉल बिल्डिंग्स, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे वर्क करते हैं टॉल बिल्डिंग्स में। ये काम पे जा रहे हैं, चलो लिफ्ट में बैठो, 100 फ्लोर करो प्रेस और 100 फ्लोर पे आपका ऑफिस है, ठीक है। वर्क भी वहीं करते हैं, लिव भी वहीं करते हैं, टॉल बिल्डिंग ज्यादा है, ठीक है। ये है मतलब। और दूसरे लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिटीज बेटर। तो एक पैरे में लिख दो वर्टिकल सिटीज के क्या फायदे हैं, एक पैरे में लिख दो हॉरिजॉन्टल सिटीज के क्या फायदे हैं, और एक पैरा जो है वो मैंने अपना बनाया कि चाहे हॉरिजॉन्टल सिटीज बेटर है, पर आजकल क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, वर्टिकल सिटीज इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। लैंड जो है वो कम है, तो वर्टिकल सिटीज जो है आगे जाके ज्यादा होने वाली हैं, तो ऑप्शन नहीं है। पर वैसे हॉरिजॉन्टल सिटीज में लोगों की लाइफ की क्वालिटी बेटर है, ठीक है। मोर सनशाइन है एंड मोर फ्रेश एयर, नेचर मोर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। बाकी कैसे अब हम कल डिस्कस करेंगे। एंड देयर फ्यू लेफ्ट, 10-12 ही रह गए हैं जो मैंने इस बार कराने हैं। एंड कल इज थर्सडे, Friday. Yes. I'll be putting up the mock test tomorrow, and today I'm going to work on the speaking file. So आप लोग पढ़ो, ये वाले essays पढ़ लो, और जो मैंने ग्राफ शेयर करे हैं वो भी पढ़ लो, because I'll be putting up 1 essay from this file and 1 graph from that file for the mock test. और जब आपने mock test लिखना है ना, आपने उस चीटिंग नहीं करनी है। Be honest to yourself, all of you. आज पढ़ लो बैठ के, don't do any cheating. Don't see and write. It won't help you in the exams. ठीक है। जो आज के ऐसे मैम इन्हीं में से दोगे ना मॉक टेस्ट में? 30 ऐसे शेयर करे ना मैंने मंडे को। ओके, उनमें से दोगे। ओके मैम। तो मैंने 20 तो डिस्कस हो चुके हैं, 10 कल डिस्कस हो जाएंगे। ओके मैम। इनमें से एक दूंगी ना, आप इनको पढ़ लो अच्छे से। जी मैम। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लो। One of these essays I'll give you for the mock test, और वो मैं पूरा चेक करूंगी। अब मेरे को कुछ बच्चे फ्राइडे को ही भेज देंगे कल, और बाकी मुझे भेज देंगे, ठीक है जी। थैंक यू Yes, ma'am. ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Good night. Bye. Good night. Good night.